Surprisingly, Kashmir Valley is breaking all previous records of hot weather, and this time around, experts are calling it as direct impact of global warming, climate change, where the intensity of heat or heat wave, if you can call it, has gone up considerably. Last 5-6 days, in fact 10 days, have seen non-stop heat wave where temperatures are breaking previous records. Just a couple of days back, Srinagar registered 35 degrees, which obviously broke a last 20-year record. 20 years back, we saw June getting this hot, and now after 20 years, June again is very hot right now. Even if you talk of minimum temperatures during the night, 134-year record has been broken. The previous night, the temperatures were registered to 23 point something, which is almost 24 degrees, and this last was witnessed 135 years ago. So that really tells you that now there's not a lot of difference between Kashmir and the other parts of the country. There was a time when people used to say that if you have to run away from heat, you can go to Kashmir, plan vacations, because the weather is very pleasant. No more that case, because weather has become very hot, and if weathermen are to be believed, this heat wave is going to continue, because June, July is expected to be even more hotter with the added influence of humidity. On the other hand, the locals who are not used to this kind of heat are now, at least the youth, heading towards waterfalls, to the beautiful streams, and taking bath, taking dip to beat the heat. That really has been the scene in the last many days, and in fact most of the water bodies in South Kashmir, the picnic spots, saw huge rush of locals, especially youth, who could be seen bathing in these beautiful water bodies, taking a dip and trying to beat the heat. In the coming days, as I said, this heat wave is only going to further escalate, and on the other hand, you also have parents, students who are demanding that there should be summer vacations also, because students are suffering, young kids are suffering, and the education departments needs to weigh in the changed weather scenario, where gone are the days when summer vacations used to be symbolic. Right now it's the need of the hour, and they also need to adjust their education calendar accordingly, keeping in view the extreme heat Kashmir Valley is witnessing, and the way the weather scenario attributed to global warming or climate change has definitely taken a turn for the worse as far as the heat wave in the Kashmir Valley is concerned. अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है अपनी इस नियामत से। पाज़रटाग जो हिस्टोरिकल एक चश्मा है, तो मैं उम्मीद नहीं करता था कि अल्लाह ताला ने ये नियामत हमारे खासकर पाज़र वहाँ के गाँवों को बख्शी है। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, खासकर बच्चे, और लुफ़ुल अंदोज़ हो जाते हैं। यहाँ गर्मी की वजह से यहाँ इस चश्मे में नहाते हैं, तो हम भी बहुत खुश होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इसकी हमें नियामत अता की है, तो मैं अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, और बच्चों को भी दावत देता हूँ कि आइए, यहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो जाइए कि कुदरत की ये नियामत है। तो हमें अब एक चीज़ करना है, अब बच्चों से ये भी गुजारिश है, सबसे ये गुजारिश है कि रिकॉर्डिंग बॉडीज़ को हमें महफूज करना है, महफूज रखना भी है, इसकी देखभाल करना है। खासकर गवर्नमेंट से भी जो है कि वो भी खास ख्याल रखे, जिस तरह उनका हक बनता है, तो इस तरह हमें भी, लोगों को भी चाहिए कि इन वाटर बॉडीज़ का खास ख्याल रखे, ताकि वो किसी किस्म का नुकसान न पहुँचे। और जब ये है तो पानी है तो ज़िंदगी है, पानी है तो हवा, पानी है तो सब कुछ है, लिहाजा इन बॉडीज़ को हमें महफूज रखना होगा। इंशाल्लाह हमने किया है बहुत कुछ, पाज़र गाँव ने किया है इसके महफूज रखने के लिए, और आइंदा भी हम करते रहेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत दफ़ा गवर्नमेंट से भी इंतज़ा किया, गवर्नर साहब भी से भी मिले हैं, बाकी मिनिस्टर साहबों से भी मिले हैं। तो ये पाज़र जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर अफसोस की बात है कि आज तक इसके तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। आप देखिए इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में 2-3 जगहों पर पानी है इस वक्त। चश्मा वेरीनाग में है, पाज़र चश्मे में है, और अछाबल चश्मे में है। बाकी सब ये जो नदी नाले थे, दरिया थे हमारे, ये सब सूख गए हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट इसकी तवज्जो नहीं देती है। मैं गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम से, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्त आते हैं और यहाँ हमारी इस आवाज़ को आप
अरबाब इक़दार तक पहुँचाती है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसकी तरफ ख़ास ध्यान दिया जाए ताकि इस वादी बारिश को महफूज रखें। अगर बात की जाए यहाँ की गर्मी की, जम्मू कश्मीर की में जो गर्मी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, और पांजत का ये जो चश्मा है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत चश्मा है। ये 500 चश्मों पे मुश्तमिल है और लोग दूर दूर से यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं। इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। आज गर्मियों के दिनों में इन्हें ये ठंडी दे रहा है, ठंडी महसूस हो रही है। आज जब हम अगर हम यहाँ पे नहाएंगे तो ठंडी महसूस हो रही है। और सर्दियों के दिनों में यहाँ पे ये गर्मी दे रहा है। इसका पानी गर्म होता है सर्दियों में, और आज गर्मियों में इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंड है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे नहाने के लिए आ रहे हैं। मैंने अभी 2-4 भाइयों से पूछा है, किसी ने बोला मैं अनंतनाग से आया हूँ, किसी ने बोला मैं डूरू से आया हूँ। बहुत सारे लोग, अगर हम ऊपर डैम की बात करें, फिशरी डिपार्टमेंट से आगे, वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा नहाने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे भी है, लोग इसलिए यहाँ पे नहाने आ रहे हैं क्योंकि इसका पानी ठंड है और ठंडी महसूस कर रहे हैं जब नहा रहे। गर्मियों से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? गर्मियों से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।